This is my new video. In this video, we will discuss a new topic, that is the function. Before starting the chapter, I want to tell you, I think you know very well ordered pair, relations, Cartesian products, because all these topics totally based on function. यही कह सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स आपको, कोई फंक्शन में भी प्रॉब्लम आपको फिर हो जाएगी बेटा। सो ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और रिलेशन, इनको अच्छी तरह से समझने के बाद फिर आप जो है फंक्शन को आप समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई रिलेशन दिया हुआ फंक्शन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट आर द फंक्शन, कैसे फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो अ रिलेशन f is said to be a function if every element of set A has a unique image in set B. Means if A and B have two non-empty sets, then relation F is said to be a function if every element of set A has a unique image in set B. यानी कि कोई भी रिलेशन है, इसके सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज प्रेजेंट इन सेट B. The relation F such that F mapping A to B. This is the way of representation any relation as a function. तो ये relation F हमारा function होगा if every element of set A has a unique image in B. अगर set A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का यूनिक इमेज प्रेजेंट है, तो वो जो हमारा रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। तो इसको हम लोग जो है मैपिंग के थ्रू या डायग्राम के थ्रू इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है जस्टिफाई करेंगे कोई भी जो रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन है। आपको एग्जांपल में बताता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल इट्स वेरी क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, see this example. Let n be the set of natural numbers and the relation are defined on natural numbers such that the relation is given x comma y, y plus 2x, x comma y belong in natural number. What is the domain and codomain and range of this relation? Is this relation a function? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यह चेक करना है, is this relation a function? तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? अभी हमने डिफिनेशन में बताया, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, अ रिलेशन F is said to be a function if every element of set A has a unique image in set B. यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट के यूनिक इमेज सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, all the element of set A has the domain of the function, and all the element of set B related in set A in relation is known as the range, and whole set B is the codomain in a function, and thus element of set B related in set A is called
image of set A and the element of set A is known as pre-image of the elements of set B. आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए और अच्छी तरह समझ में आएगा मैंने क्या बताया अभी। आइए अभी डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। वेरी सिंपल डिफिनेशन है। दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू एक्स वाई, y is equals to 2x, xy belong in natural number. So you know students, any relation can be represented by two methods. The first method is the roster form. It is also known as tabular form, and the second one is the known as set builder form. So this relation is given in the set builder form. So this is the set builder form of a relation. So first of all, we convert it in form of tabular form. Okay. So R equals to x y, and x y is the natural number. Suppose we consider x is equals to 1. Then put here, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 we get y equals to 2. So 1 comma 2. Again consider x is equals to 2. X equals to 2. Right here at the place of x 2. Then y equals to 2x, so 2 2s are 4. Now put x is equals to here 3. Where y equals to 6. Again put 4. X is equals to 4. So 4 2s are 8. ऐसे हमें ये रिलेशन जो है बनता जाएगा। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग के थ्रू अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप जस्टिफाई कर लेंगे कि जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। कैसे हम चेक करते हैं। यहाँ पर x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और y भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। मींस सेट A भी नेचुरल नंबर है और सेट B भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर। आइए देखिए, दिस इज द सेट A and this is the set B. Set A and this is the set B. Okay. The element of set A has 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. All natural number. Set B has, जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की थी, x की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमें y क्या मिला था? हमें y 2 मिला था। यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है। So this can be say 1 related to be the 2. Again 2, जब when we put x equals to 2 we got y equals to 4. So we can say 2 is related to the 4. So 2 is related to the 4. 1 related to the 2, 2 related to the 4, 3 related to the 6, 3 related to the 6, now 4 related to the 8. Similarly, if we put here x is equals to 5, then y equals to 10. So 5 related to the 10. One thing is very important here. Every element of set A has a unique image in set B. ये हमें दिखाई पड़ रहा। ऐसा बेटा नहीं हो आप कर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा है क्या कि 1 के 2 इमेज हैं? नहीं। ये जो सेट A और सेट B है तो सेट B के जो एलिमेंट होते हैं that is called the image of the element of set A and the element of set B is called pre-image of the element of set B in relation. तो यहाँ पर ये रिलेशन जो है हमारा फंक्शन होगा। दिस इज द फंक्शन
ये जस्टिफाई होता है यहाँ पे कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज प्रेजेंट इन सेट बी। तो जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं कि 1 की इमेज 2 पे भी बन रही है और 1 की इमेज 4 पे बन रही है, नहीं बन रहा है ऐसा। 2 की इमेज कहाँ बन रही है? 4 पे बन रही है। 2 की इमेज और नहीं बन रही है, नहीं। So this relation is a function। तो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर कैसा लिखेंगे इसके बाद? Since every element of set A has unique image present in set B। ये आंसर लिखेंगे। Every element of set A has a unique image present in set B। set A के जितने भी एलिमेंट हैं ये B से कनेक्टेड यहाँ पर हैं, तो ये कहलाएंगे इसकी इमेज। set A के एलिमेंट की ये इमेज है और द एलिमेंट ऑफ set B ये इमेज हो गई, और द एलिमेंट ऑफ set A है वो कहलाएंगे प्री इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ set B। तो ये प्री इमेज है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जस्टिफाई हो गया कि दिस इज द रिलेशन। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। वी ऑलरेडी नो द डिफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ डोमेन, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड to the element of set B in a relation is known as the domain, and all the whole set of B is known as codomain, and those element of set B related in A is known as the range। तो इस definition के बिहाफ पे हम यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे बहुत इजी वे में। तो ये क्या है हमारे 1 2 3 4, these are नेचुरल नंबर। ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर है, therefore डोमेन। तो जब डोमेन निकालेंगे हम तो इसका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन और सेट फंक्शन। सो ऑल द नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कोडोमेन। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 हमें कैसे मिला था बेटा? जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किए थे तो हमें क्या मिला? 2 मिला। x की वैल्यू 2 पुट किए थे तो ये 4 मिला था। x की वैल्यू 3 पुट किए थे तो 6 मिला। अगर हम यहाँ पे we can add here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on। So this whole set is known as codomain of the function। तो यहाँ पे codomain क्या हो गया? Real number, sorry, natural number। This is the natural number। Counting number are known as natural number। So this all the element is known as codomain of the function। At last, range, रेंज ऑफ फंक्शन। तो अब देखिए रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रेंज फाइंड करने का मेथड। तो रेंज जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम ये देखते हैं कि सेट बी के जो एलिमेंट, सेट जिनकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, सेट बी के उन एलिमेंट को देखते हैं जिनकी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर देखिए 1 का प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, 4 का प्री इमेज नहीं है, 7 का, 5 का, 9 का प्री इमेज नहीं है। इनके प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट 2 4 6 8 10 हैज प्री इमेज प्रेजेंट इन द सेट ए। और ये 2 4 6 क्या है? इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 10 is the even natural number। Therefore, the range of this function is even natural number। So range is even
natural number. Okay students, now next example. Now students, one more example. Which of the following relations are functions? Give reasons if it has a function. Determine its domain and range. वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसको आप सॉल्व करने के बाद ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किसी भी रिलेशन को कैसे हम फंक्शन जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आइए पहले जो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स। जो पार्ट 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम रे डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू, और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय हमें जाना पड़ेगा डेफिनेशन पे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन f is said to be relation f said to be function if every element of set a has unique element। तो अब ये देखिए कि क्वेश्चन हमारा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 की इमेज 1 पे है, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज क्या है 1। तो एवरी एलिमेंट है सिंगल इमेज। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे आपने बनाया सेट ए और यहाँ पर आपने फॉर्म किया मेक अ सेट बी। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। सो एंड यू आल्सो नो the first element of ordered pair in relation, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं कहाँ से लेते हैं हम, सेट ए से लेते हैं, और सेकंड एलिमेंट को ऑर्डर पेयर को कहाँ से लेते हैं, सेट बी से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ आपका 2, 5, 8, 11, 14, लास्ट वन 17। नो सेकंड एलिमेंट 1 1 1, ओनली 1। देखिए 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। So all the element of set A has unique image present in set B। 2 की भी इमेज 1 है, 5 की भी इमेज 1 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको हो सकता है एक कंफ्यूजन आ जाए कि सर 2 की भी इमेज 1 है, 5 की भी इमेज 1 है, 8 की भी इमेज 1 है, 11 की भी इमेज 1 है। तो बेटा ध्यान पे यहाँ भी देना है स्टूडेंट्स कि सबके जो इमेज 1 जरूर हैं। आप ये सपोज करो जैसे y = 2x है, अगर आपने x = 1 पुट किया तो y = क्या मिला आपको, 2 × 1 = 2। लेकिन आपको अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, यानी कि एक फंक्शन का जो है 2 वैल्यू नहीं आ रहा। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं डोमेन कहते हैं, जिस वैल्यू को हम यहाँ पे फंक्शन में पुट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जो रिजल्ट हमें मिलता है पुट करने के बाद, जैसे यहाँ पे x हमने पुट किया, हमें क्या मिला 2, तो ये जब वैल्यू हमें मिलती है उस वैल्यू को हम कहते हैं रेंज, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो अगर हम डोमेन निकालेंगे यहाँ पे तो हमें निकल जाएगा इजी वे में, और रेंज भी हमारा बट निकल जाएगा, फाइंड आउट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, गिव रीजन ऑफ इट हैज अ फंक्शन। सो दिस इज द फंक्शन, और रीजन पूछ रहा है। रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज प्रेजेंट इन द सेट बी। ये सिंपल रीजन है। तो राइट हियर, राइट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज
this is the first of all लिखेंगे आप आंसर. Given relation is a function because every element of set A has unique image present in set B. ये रीजन हो गया आपका. Now determine the domain and range. अब आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है. तो डोमेन क्या हुआ? According to your definition, all the element of set A related into the set B is known as the domain. तो ये आपको क्या मिल गया? डोमेन. तो यहां से आपने निकाल लिया डोमेन. तो डोमेन हो गया 2 5 2 5 8 11 14 और क्या हो गया 17. और यहां से भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं रिलेशन से, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए में बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी में बिलोंग करता है. तो ये आपका निकल गया डोमेन निकल गया. आपको रेंज भी पूछा है, तो रेंज क्या है इसका? रेंज इज इक्वल्स टू 1 एंड गिवन रिलेशन is a function. So students, I hope आप फंक्शन को समझ गए होंगे, कैसे हम डोमेन निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, और कोई भी रिलेशन अगर दिया है तो कब फंक्शन होगा. ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोशिश किया इस वीडियो में समझाने के लिए. लास्ट थिंग, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के बिहाफ पे मुझे और हम क्या अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, कैसे अच्छे वीडियोस आपको दे सकते हैं, इससे डिपेंड करेगा आपके फीडबैक पे स्टूडेंट्स. सो गिव मी योर फीडबैक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.